सर जैसे अभी रिसेंटली अंबानीज की फैमिली में शादी हुई जहाँ पे लड़के वालों के फाइनेंशियल स्टेटस और लड़की वालों के फाइनेंशियल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फर्क था। ऐसी शादियाँ सक्सेसफुल होती हैं या उसमें कोई इश्यूज आते हैं? Normally क्या होता है, either you see a Punjabi matrimonial or you see a Marwari matrimonial or you see a matrimonial who works for judge, anything. We came with the concept that we were working for all the caste. 25 साल पहले 28 साल पहले मैच मेकिंग थोड़ी ईजी थी या अब थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है? Anything which you do it from the heart makes you a genuine person. When we talk about a particular profile, it is good for somebody. We give you the reason why it is good for you. Try to understand them whether they have understood you or not. नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। आज हमारे साथ एज अ लेजेंड हिमसेल्फ मिस्टर प्रवीण ऑल, जो साइकोरेंट के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो प्रवीण जी, इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट विद यू, और थोड़ी अपनी जर्नी, अपनी लाइफ के बारे में बताएं और साइकोरेंट के एसोसिएशन के बारे में बताएं। I joined Psychorian when Psychorian came into existence, you see. ओके। And matrimonial. This is a matrimonial. The importance of matrimonial, I would like to tell you, is basically why people come to matrimonials, because everybody has got a limited exposure, a limited reach to the society. Okay. Now, when you want to find a match for you, somebody in the family, you need a bigger choice. राइट। To find a bigger choice, the right platform is matrimonials. Right. Otherwise, you can also, in your circle also, you can find the thing. But matrimonials concept came only because of this. Having a bigger access to the society. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Right. ऑफो। And when you, what more you, I mean, वो बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, now we came into this matrimonial thing. We started in 1996. ओके। That was a time where matrimonial was not very common. It was restricted to one or two matrimonial companies. So you mean to say there were not very many companies at that particular time? No, there were not. There were companies like you must have heard, you see, Shadia and all that kind of a thing. 422 वगैरह वाले जो थे। Yeah. ओके। जब आप ट्रेन में सफ़र करते थे तो आपको बोर्ड दिखाई देता शादिया एंड काइंड ऑफ a thing. अच्छा, so you mean to say he's been the pioneer of the entire You can say so, because at the beginning it was him only in the limelight. शादिया से ही शुरू हुआ था ये. and was there a boom on the internet in terms of other matrimonial? There was not much. There was not much. And as far as you talk about on the net, the matrimonial, this all started after we floated our company. Because I remember when we floated our company, when we were initially, when we floated the company, after about a year or maybe 6 months, then we also came to know about this Shadi.com and all that. And So you mean to say you inspired a lot of people to come into this business? yes, of course. Oh, that's amazing. And there was much demand of the matrimonials. That's why people used to come to us, you see. And now? In nutshell, I can say, for a bigger choice, to find a bigger choice for that bigger choice, people will come to a matrimonial. So you mean to say anybody who comes to matrimonial services, they'll get a wider choice in terms of... They will get a wider choice. So that's not going to the way. And then एक matrimonial में एक और चीज़ होती है कि caste wise. Caste wise, normally क्या होता है, either you see a Punjabi matrimonial or you see a Marwari matrimonial or you see a matrimonial who works for judge, anything. Okay. We came with the concept that we were working for all the caste. Oh, you mean all the caste and community and religion also? Religion to the extent, yes. Initially, yeah, we are working, but there are certain things, you know, if we talk about religion, Muslims, for example, we are working for them also, but on a smaller. So don't you think at that particular there were too many things in your basket? So we could manage it. Oh, wow. We know about a caste. Okay. To work for different castes, you have to have a knowledge for that caste also. Okay. Because every caste has got different traditions. Until I know the tradition, I will not be able to work.
So it has a lot of, when you talk about caste, there's got a lot of, layers to it in terms of their norms, their rituals, their value systems. Absolutely. And the way they conduct. Absolutely. So you normally make sure that you, the people who are working with you or you yourself are being trained enough to understand those nuances and take it forward. That is a must, you see. If I'm talking about, if you come for a Punjabi and I do not understand what is Punjabis, the intricacies of Punjabis, marriages and other things, you see, their religion and all that, I'll not be able to. So that's probably one of the reasons that makes you one of the leading companies in the matrimonial services. That is the reason, because of that is the reason. That's why we have such a big growth. Yeah, group. There are almost about 200 plus people are working. Oh, that's So it is not required. 200 people are not required if we only have to. If we don't have to have the knowledge of these things. So we do have people from all the caste to give you a comfort level of it. So what kind of quality do you imbibe in your staff or people who join Psychoran? Because there's a lot of research you probably might have done. आप लोगों ने Initially, what we basically look, you should be able to interact with the person and interact to the extent that you should be able to give the confidence to the other side, to the person, that you understand and you will be able to cater in to his requirements. तो फिर सर एक बात बताइए, जब एक नया स्टाफ आपके पास आता है तो वो किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, उसको समझाने में भी तो टाइम लगता ही होगा. तो आइडिया कितना टाइम लग जाता था कि एक ज़ीरो से एक आदमी को पूरे आपके हिसाब से ट्रेन होकर के प्रोडक्टिव मतलब जब वो मैच मेकिंग स्टार्ट कर देता था, ये ड्यूरेशन कितना होता था आपके हिसाब से? 3 to 6 months. 6 महीने में आप एक स्टाफ को आप If we cannot imbibe the things into the staff what we are wanting, then what is the point of running a company? हाँ, तो आप 6 महीने में लोगों को स्टैंड कर. Minimum 6 months you have to have. Okay. To be completely polished. अच्छा, इसमें कम्युनिटी के अलावा और कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोग बहुत बारीकी से देते हैं? एज यू राइटली सेड द वर्ड इंट्रिकेसी. सो आप और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप में या मैक्रो लेवल पे देखते हैं जिसकी When you talk about different communities, different castes and all that, it all comes with that. There are certain castes, those who believe in horoscope. ओके. There are certain people, in nutshell, everybody believes in a horoscope. But to what extent? And if you ask my take, you see whether I believe in that or not, I take it this way: anything which you do it from the heart जी. makes you a genuine person. Anything which you want to pick up and want to be a part of it, just because society is doing it, it will not give you the results. So there's a lot of debate. Some people talk about horoscope matching is not good, not required. Some people talk about my horoscope matchmaking is required. If you ask me, I personally believe, like I initially said, it has to be from within. If you really believe it, you must be having reason to believe it. If you really believe it, you must be having your own reasons to believe it. Okay. As if you do it with dedication, trust me, you get the results also. तो जी. तो बहुत छोटे में आप ले लीजिए कि you run a race. If you are running a race with determination that I go to run from here to there, and this is how I have to, you will be able to run. Otherwise, everybody is on this earth. Everybody is a ओके. तो प्रवीण सर, आप जैसे आपने कहा कि आप लोगों को 6 महीने तक ट्रेन कर देते हैं, तो आपकी कंपनी में लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं? क्या would you prefer, और दोनों 50-50% है, or you prefer females or you prefer males? क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है इसमें. देखिए, मैं आपको इसका जवाब ये आपको देता हूँ. नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन नेचर होती है कि you are always attracted by the opposite sex. This is the reality. अच्छा. And that is the reason we don't have percentage for so many boys, so many girls, so many ladies, so many gents. We have a mixed staff. ओके. आपको लगता है मेल ज़्यादा अच्छा कन्विंस कर सकते हैं फीमेल, या ज़्यादा फीमेल कन्विंस से ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं,
I personally won't like to be a very this thing specific in percentage. ओके Both of them they can do it. ओके। तो प्रवीण सर, अगर हम बात करें कास्ट की, जब हम इतने डिटेल में बात कर ही रहे हैं, तो आजकल जैसे इंटर कास्ट को लेकर के आपका क्या व्यू है, और इंटर कास्ट को लेकर के आपको क्या लगता है कि ये आप लोग कराते हैं, और किस टाइप की इसमें आपके एक्सपीरियंसेस है? इंटर कास्ट को लेके इफ यू टॉक अबाउट, सबसे बड़ी चीज ये है कि you got to be very honest to yourself. Are you willing to accept the other things also? अपने रोज के रूटीन में जिस तरह से आप जीते हैं, जो आपका जीने का तरीका है, उसमें अगर थोड़ा सा डिविएशन होता है, are you willing to take it? So before saying that I want to go for intercaste marriage, you have to prepare yourself. So how honest you are when you say कि I'm open for all the castes, it depends on you. तो प्रवीण जी, मेरा एक सवाल है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो आप इंटरकास्ट के लिए आप प्रपोज करते हैं, या क्लाइंट खुद ही एक मेंटली प्रिपेयर होकर के आता है कि मैं अपनी कम्युनिटी में तो देख ही रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दूसरी कम्युनिटी में होगा, मैं वो भी देख लेता हूँ? तो इज इट प्रॉम्प्टेड बाय यू और इट इज अ सेल्फ कॉल? It has to come from the client. ओके क्लाइंट को ही बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं. अच्छा, कभी ऐसा भी होता होगा कि जैसे, और अगर हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, जिसके पीछे एक हमारा इंटरेस्ट होता है कि बिकॉज वी वांट टू हैव, वो ये हिंदी वाली बात होगी, वी वांट टू हैव मोर एल्बो स्पेस. फिर आई कमिट फॉर सी, आप मेरे पास आए शादी के लिए, रिश्ते के लिए, मैंने आपको समझने की कोशिश की, उसके बाद मैंने आपको कमिटमेंट दिया. ओके तो वो कमिटमेंट में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम स्पेस हो आपको केटर करने के लिए. बहुत नैरो स्पेस में मैं नहीं काम करना चाहता. तो आप आई डोंट फोर्स ऑन यू. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इट हैज टू कम फ्रॉम यू. अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, आप जैसे कोई आपके पास आया, कहता है मेरे को डॉक्टर चाहिए, आपके उस कम्युनिटी में, जैसे लेट्स से हम किसी कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, जनरल उस कम्युनिटी में वो वाले डॉक्टर्स नहीं है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी. नहीं, मैं ये कह, आइदर ही उसे हम सरदारों में ही देखेंगे. मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं आपके पास आता हूँ, कहता हूँ मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, और मेरे को सिख में ही एक डॉक्टर चाहिए, और वो भी ऐसा डॉक्टर चाहिए. तो आप क्या वो भी विश जो होती है वो फुलफिल कर देते हैं, या उस केस में आप उनको गाइड करते हैं कि नहीं, आपकी कम्युनिटी में नहीं होगा, आप थोड़ा इस चीज़ को लेकर के ओपन रहिए? हम उनको सजेस्ट करते हैं. ओके, सजेशन आपकी तरफ से आती है या सेल्फ प्रॉम्प्टेड होती है? नहीं, सजेशन हम उनको इसलिए देते हैं कि हमको एल्बो स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है काम करने के लिए. तो ये हर केस में होती है, ये ऐसे स्पेसिफिक केस में ही होती है? नॉर्मली आजकल का जो ट्रेंड है उसमें पीपल ऑलवेज कम विद ओपन माइंड. मैं एक आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछने जा रहा हूँ प्रवीण सर, इसका जरा मुझे बताइएगा. मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है, और मेरे व्यूअर्स को भी क्यूरियोसिटी है. 25 साल पहले या 28 साल पहले मैच मेकिंग थोड़ी इजी थी, या अब थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है? नहीं, पहले भी इजी थी, अभी भी इजी है, खाली स्टेक्स अलग अलग हो गए. थोड़ा इसको आप डिटेल में समझाता हूँ. सी, व्हेन a 22-year-old or 24-year-old person comes for a marriage, they are more obsessed with the, उनका ऑब्सेशन होता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, बहुत जाने वो नहीं होती है. अच्छा, तो उनको कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है. ओके, वंस यू हैव लिव्ड योर लाइफ, आपने 30 साल जिंदगी जिए, उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखे हैं, टारगेट्स बनाए हैं, उनको अचीव कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, बाई हुक और क्रूक कर पाए हैं, या बाई राइट मीन से कर पाए. ओके, तो ऑल दिस एक्सपीरियंस इज विच इज इन योर माइंड, इन योर बैक ऑफ द माइंड, मेक्स यू मोर डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन अ प्रोफाइल. तो ये मीन टू से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप यू बिकम मोर चूजी मोर सिलेक्टिव. हाँ. तो ये उस वक्त भी यही था 28 साल पहले जब आप आए थे? उस समय भी यही था, पर उस समय आम ट्रेंड ये था कि 25 तक शादी हो जाती थी, तो ऐसी सिचुएशन फेस करनी नहीं पड़ती थी. अच्छा, तो मतलब उस वक्त जो आप मेजॉरिटी ऑफ केसेस थे वो यंग एज के बच्चे ही होते थे जिनके लिए आप काम करते थे. अब वो शायद जो पोलराइजेशन हुआ है उसके अंदर ये भी हुआ है कि आपके पास बड़े एज के भी बच्चे या कैंडिडेट्स या आई वर्क अप टू द एज ऑफ 80. तो आप ये कह रहे हैं प्रवीण जी कि अब सोसाइटी के अंदर जो चेंज आया है, उस सोसाइटी के अंदर लोग थोड़े से ओपन माइंडेड हो गए हैं,
और अब फाइनेंशियली भी शायद इंडिपेंडेंट हो गए हैं। कई बच्चों के लाइबिलिटीज़ भी पेरेंट्स की ख़त्म हो जाती है, और अगर वो सिंगल पेरेंट्स हैं दे वांट टू लुक बियॉन्ड देयर सो कॉल्ड उनका जो डोमेन है कि भाई पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, बच्चों की शादियाँ हो गई जी। अब वो खुद क्या करें। तो आपको लगता है काफ़ी चेंज आया है, लोग ओपन हो गए हैं सब चीज़ों को लेकर के? चेंज तो है सोसाइटी में। अच्छा, Now whether it is good or it's bad, I won't like to make a comment on that. That's why नहीं बट वो तो इफ़ यू डोंट वांट टू मेक अ कमेंट देन इट, तो फिर ये एक हमारे व्यूअर्स को बड़ा डिलेमा सा रहेगा कि ये सही है या गलत है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं कहा टाइम के साथ जो चेंजेस हुए हैं उसमें people have become, because rightly you said there is a single parent also, those who have left everything to bring up the children. Now children are settled. बच्चों की भी एंजाइटी होती है कि एज वी हैव आवर ओन लाइफ, सो आई पेरेंट्स शुड आल्सो हैव अ पार्टनर। मुझे बताइएगा प्रवीण जी, जो 80 इयर्स की आपने बात करी वो मेल है या फीमेल है? और जो अगर फीमेल, अगर वो मेल है 80 इयर्स के, जो हायर एज लिमिट लेडीज़ की या गर्ल्स की, आई डोंट नो व्हेदर टू कॉल देम गर्ल्स और लेडीज़, 65 तक। जो लेडीज़ की वो है वो 65 तक है। अच्छा, तो इनकी नॉर्मली इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं? जैसे जब आप एक यंग कपल के लिए एक यंग बच्चे के लिए काम कर रहे हो, somebody who's 65, इनकी दोनों की एक्सपेक्टेशन में क्या फ़र्क आते हैं और मेजर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनके? देखिए, इनकी एक्सपेक्टेशन तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर अ शोल्डर, दे आर लुकिंग फॉर मोर ऑफ अ कंपेनियनशिप। मोर ऑफ अ कंपेनियनशिप। पर अगेन माइंडसेट, you are looking for a companionship, but you are looking when you talk about a presentation of a person, you want that person should present himself or herself as 45, 35. थोड़ा और Now, some में आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि उम्र के साथ साथ आपके अपीयरेंस में भी चेंजेस होते हैं। पर when it comes to कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, वो बैरियर आप भूल जाते हैं and you go back to the 35, 45, 35, 30 उस समय की। तो प्रवीण सर, जैसे आजकल कास्ट को लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, आपने कहा सीनियर सिटीजन्स की भी आप लोग शादियां करा रहे हैं, तो आपका जो डोमेन है वो सिर्फ दिल्ली में है या बाहर भी है आपका? कहाँ ऑल ओवर द ग्लोब। अच्छा, नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब। आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप लोग बहुत प्रोमिनेंट हैं, या आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या इट्स एवरीवेयर? It all depends to the reach somewhere. I'm looking at why, like you talk about Punjab, you talk about North India, we are very strong. You talk about other part of India or abroad. Abroad maybe there are certain this thing. You talk about Europe, you talk about America, you talk about Canada. Yes, we have people from there. तो मेनली अगर हम आपको क्लासीफाई करना चाहें तो आप कौन सी रिलीजन में ज़्यादा, जैसे सिख में है, हिंदूज में है, या मुस्लिम्स में है, डोमिनेंस किस में है आपका? Hindus, मेनली हिंदू। और कौन कौन सी कम्युनिटी के लिए आप मेजरली काम करते हैं हिंदूज के अंदर? Punjabis, ओके Mayas, ओके and any other caste. और किस टाइप की क्लाइंटल आते हैं आपके पास? How are you clienteling? That is basically they are upper middle class. It starts from upper middle class to the who's who. उसकी डेफिनेशन आपको देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि अपर मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या होती है? People who are affluent, who don't have to think before asking for anything. Those who kind of form that. That is, I think then side upper middle class people see. ओके ओके। और आपका जो डेटाबेस है वो मेजरली इस कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 50-50%, या उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हैं कि लड़कों की रेशियो ज़्यादा है या लड़कियों की रेशियो ज़्यादा है? किस में ज़्यादा है आपके रेशियोज? It varies, but normally the girls are more. अच्छा, जो हम 40+ एक स्लैब ले लेते हैं कि अगर हम सोसाइटी को, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 40+ का स्लैब ले लेते हैं, तो उसमें मेजरली जो 40+ के जो क्लाइंटल आते हैं वो लेडीज़ आती हैं या जेंट्स आते हैं आपके पास? मेल्स आते हैं या फीमेल्स आते हैं? Males and females both. बोथ।
अच्छा, रेशियो 50-50% की ही रहती है। ओके, तो उसमें भी कास्ट के बैरियर होते हैं सर, या उनका जो थोड़ा उससे कास्ट की बैरियर नहीं होते। ओके ओके एंड द ओनली थिंग इज आपके टेम्परामेंट में थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है। आई विल नॉट कॉल इट ए रिजिडिटी, यू बिकम मोर चूजी। द रीजन इज बिकॉज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस स्पीक अलाउड देयर, यू सी वेयर इट कम्स टू पिकिंग अप। तो यू मीन टू से यू हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ विजडम नाउ, फिर आपको पता है क्या आपके लिए अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो उस हिसाब से आप उसको चेंज में। ओके, तो इसमें आपकी भी जो मेरे को जैसे आपने बताया कि आपका काउंसलिंग का बहुत मेजर पार्ट रहता है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप उनका हैंड होल्ड करके उनको समझाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें भी आप उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, या आप सिर्फ प्रपोजल दे देता कि we help them. You remember I told you that when we talk about a particular profile, जी it is good for somebody. ओके We give you the reason why it is good for you. ओके Because the same profile is not good for everybody. If I've got 4 profiles for that particular profile, maybe 2 profiles are very good, maybe 2 profiles are compatible. This is तो ये आजकल कंपैटिबिलिटी का जो वर्ड जो इतनी प्रोमिनेंस में आया है कुछ सालों में, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कंपैटिबिलिटी का जो वर्ड है ये व्हाई इज इट पिकिंग अप सो मच, एंड व्हाई इज दिस द होल सोसाइटी इज गिविंग लॉट ऑफ थ्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड एज कंपैटिबिलिटी? And most of the people talk about compatibility, not, I will not say, I will not degrade them that not understanding, but not exactly reaching to the depth ki what is a compatibility. According to me, compatibility is that you should look for a partner who's got, or compatibility is that whatever you have been given by your parents, by virtue of your this present life, by default, all those things should not be denied, but it cannot be taken as arithmetically. थोड़ा आप इसको व्यूअर्स को और थोड़ा सिंपल करें सर। जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं, जो कंफर्ट्स आपने आज तक एंजॉय किए हैं, वो चीज़ें आपके अंदर एम्बाइब हो जाती हैं और उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ओके बहुत से लोग कहते हैं कि हम छोटे घर में रिश्ता कर लेंगे। माई सिंसियर एडवाइस इज डोंट गो ऑन दैट। डोंट डिनाई अ पर्सन whatever the person got by default. Compromise is called that only कि there also in case you feel you're going against that is called adjustments. तो आप थोड़ा और इसको क्लियर करेंगे जब आप बताते हैं कि कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप अपने टाइप के ही लोगों के साथ जो कुछ आपको मिला है लाइफ से इतना तो मिलना चाहिए, बाकी बोनस है। बाकी बोनस तो इसके अंदर भी बहुत डिस्पैरिटी रहती है इसके अंदर। जैसे कि किसी की इनकम एक्स है और किसी की एक्स प्लस वाई है। It's not income. ओके It's not income. See what kind of upbringing, what kind of environment you are coming from, what kind of upbringing was given to you, what you were privileged to have. जो चीज़ आपको मिल चुकी है, by the grace of God or by default, whatever you call it, one refuses to be denied of that. हम डिनाई नहीं होना चाहते, उतना मिले, that is called, according to me, compatibility is that कि the kind of environment, the kind of surroundings, the kind of lifestyle, the kind of culture you have lived in, Okay. that should not be denied. उससे वो जो मिलता है वो बोनस। तो प्रवीण सर, आपकी अपनी एक एज है, आपका 28 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने कितने सारे लोगों को ट्रेन किया, कितनी सारी शादियां कराई, और कितने सारे आप लोगों ने लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जिन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। आई नो क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस हु आर ट्रेन्ड अंडर यू, जो साइकोरन में काम करते थे तो उन्होंने अपना काम खोल लिया। तो फॉर व्यूअर्स जो अभी शादी करने के वर्ड्स पे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहें, बी इट अ मेल और फीमेल, की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक विजडम है। My suggestion or my advice to them will be, easy when you go for the marriage to a service provider, try to understand them whether they have understood you or not.
and how that can be assessed? Like, you come to me, I pamper you. Don't take me on face value. I pamper you. कि आप बहुत अच्छे. Try to understand back of my mind. I have to do the business. But when I talk about you, see, that is the reason psychology is different. That is, when we meet you, we try to read you between the lines. Which your peers or competitors fail to understand. I mean, according to me, it is. We try to read you between the lines. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. मैं जब आपके घर जाता हूँ, जी. तो I don't go to your house to see the palatial house, the kind of luxury you are living in. जी. Because you see, when I go there, I spend about 2-3 hours. उसके बीच में आम बातें भी होती है. We watch you. How do you interact? How do you interact with me? ठीक है, I'm your guest. You're trying to give your best. But how are you interacting with your family members? How are you interacting with your servants? How are you carrying yourself in the house? That speaks a lot. अच्छा, बेस्ड ऑन दैट आप एक अपनी ओपिनियन बनाते हैं और फिर उसको आप उसको क्लासिफाई करते हैं अपने हिसाब अब से. जैसे आप you go to any wedding, any matrimonials, everybody turns around and says, हम आपको आके visit करेंगे. Tell me one thing, if I call you for 2 hours, what will you know about me? You will know only what I'm saying. But if you know कि what kind of expressions I'm using, then you will understand. एक एक्सप्रेशन होता है जो मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए करता हूँ. एक एक्सप्रेशन आपका होता है जो आपके अंदर एम्बाइब्ड है. अगर वो एक्सप्रेशन मैं डिफरेंट मतलब एनालाइज कर सकता हूँ, देन आई कैन से दैट आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. तो आपने जितनी बातें बताने की कोशिश करें, मुझे लगा प्रवीण सर जिस डेप्थ तक आप लोग जाते हैं, जितनी आप इस लेयर के अंदर जाते हैं, उतनी आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्लाइंट्स की, और उतना ही आपको ईजी हो जाता है उसको प्रपोजल या प्रॉस्पेक्ट्स रिकमेंड करने का. तो इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट होते हैं जो आप लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, सूटेबिलिटी, कुछ और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर? मेन चीज़ें यही होती हैं. बाकी तो आप देख लीजिए कि भाई एक्स नंबर and number of this and number of that, वो I don't give much importance to that. इसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? अगर हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करते हैं, the only thing I'll say, if you feel comfortable being with somebody, standing with somebody, you feel good, that is what you're asking for. अच्छा, अगर जैसे हम बताएं कि रिजेक्शन बड़ा छोटा सा सवाल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, शायद व्यूअर्स इस चीज़ के साथ रिलेट भी करें. आजकल एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस बड़ी फास्ट हो रही हैं. आपने किसी को मेल भेजा, आपने किसी को व्हाट्सएप किया एक प्रपोजल, उनका 2 मिनट में रिप्लाई आ जाता है कि नॉट इंटरेस्टेड, looks not appealing and all that. ऐसे challenges आते हैं. That's what I'm saying. See, when you come to a service provider is putting his or her heart into this by suggesting a profile. Give a patient hearing. Try to understand him. Why? You can always say no. But give him a patient hearing. Think about that. अगर आपने अपने माइंड फिक्स अप कर लिया कि यहाँ रुकूंगा या नहीं रुकूंगा, तो फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की क्या जरूरत है? अपने आप ढूंढ लीजिए. I personally feel that if you don't understand and if you don't give that liberty to your service provider to suggest you a thing, there is no point going to a matrimonial. अच्छा, मैं एक छोटा सा आपको एक ट्रिकी सिचुएशन देता हूँ. लेट्स से मुझे पेरिस जाना है, एग्जांपल. आप कहते हैं पेरिस मत जाइए, उससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत जगह ये है. मैं कहता हूँ नहीं, मुझे पेरिस ही जाना है. आप कहते हो नहीं, उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह ये है, आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें. तो ऐसी सजेशन जब आप किसी को देते हैं कि नहीं यू अंडरस्टैंड और ये आपके लिए बहुत अच्छा, तो ऐसे कितने लोग हैं इन परसेंटेज जो आपको आपकी बातों को सुन लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन लोगों से मिलने भी चले जाते हैं? People who listen, they are very efficient because this is what the track record is. People who are rigid about their decisions, उनकी शादियाँ नहीं होती? I don't say नहीं होती है, होती शादियाँ तो हर एक की होती हैं. जी जी. पर उसमें I won't like to make a comment because I won't like to be a part of that also. There are people who say, प्रवीण जी हमने आपको 2 लाख रुपया दिया, who are you to tell me whether I should pursue or I don't pursue? तो मैं आपको अपना एक सजेशन देता हूँ, रीज़न देता हूँ, and that's all. वो लोग मानते भी हैं
कितने परसेंट मांगते हैं? मेरा मानना जानना ये है कि मैं अगर आप See, if I say our success rate is 15% or 20%, so I'll say 20% people they understand. अच्छा तो आप ये कहने का मतलब ये, मैंने दूसरे शब्दों में आपको ये कहा कि जो इस चीज़ को मानता है उसकी शादी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, Strict नहीं। And the person who is not willing to give importance, why? Because first thing I said, when I say this profile is compatible, I have a reason. You can always question me. What makes you say that this is compatible? but is always really inclined to accept or reject. It is final decision is yours because it's your life. I cannot enforce my ideas on you. Any other points for young generation who are planning to get married you think are important, which you feel apart from Yes. these things? I would like to say the first thing is most of the people today they get into the relationship, they get into the marriage. Why? Either father said it, or the family said it, or this person said it, because they don't even think about the person and they jump for it. First, you should have a respect for the person. Meet a person. If that person comes into your mind after 3-4 days, it means that person has left some impression on you. Try to analyze that impression and then proceed. अच्छा इसमें फाइनेंशियल्स को आप कैसे मैच करते हैं, या कितना पैसा शादी में लगेगा, किस टाइप के इवेंट्स होंगे, इसको आप कितना हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को? This is between both the families. I give you the real picture. What is according to me. This is a picture about this family. This is a picture about this family. तो आप कहीं पे इस लेवल पे भी आते हैं कि वो आपको कहते हैं कि हमें ये गाड़ी चाहिए और आप वो गाड़ी दिलाते हैं? We try to avoid this. We try. You always make them understand, sir. Once you people like each other, once you people interact, and there is interaction which is going further, that is the time you people have to decide among yourselves. अच्छा उसके मतलब एक सर्टन स्टेज के बाद आप वो चीज़ छोड़ देते हैं। और नॉर्मली कुछ कम्युनिटीज़ में पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, कुछ कम्युनिटीज़ में नहीं होती है। तो कौन सी कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है और कौन सी कम्युनिटीज़? अगर हम वैश्य समाज की बात करें वहाँ पे है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड normally people feel budget means they want that much money. No, it does not happen. If a family, a girl's family says, a boy's family says, our budget is 80 crores. Take it for granted that your daughter is going into 150 crores. It is not that they are wanting 80 crores. They themselves are more than 80 crores and they want so that the child who comes from 80 crores background feels comfortable. Perfect. And what is your take on a girl coming from a financially higher family getting married to somebody who's not from an equal financial status? I personally feel it should not happen because you see, देखिए ऐसा होता है शादी के बाद it becomes like you take things for granted. You take your wife for granted. Your wife takes you for granted. That is the time that you are a human being. कभी कभी दिमाग में आता है मैं तो आपको छोटे घर से लेके आया हूँ, and that is the end for the relationship. आप उसको जितना भी मेंटेन कर लें। तो प्रवीण सर, जैसे अभी रिसेंटली अंबानी की फैमिली में शादी हुई जहाँ पे लड़के वालों के फाइनेंशियल स्टेटस और लड़की वालों के फाइनेंशियल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और जहाँ पे अंबानी साहब की बिटिया की शादी हुई और जहाँ ऑपोजिट साइड लड़के वालों को जो फाइनेंशियल स्टेटस था उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ऐसी शादियाँ सक्सेसफुल होती हैं या उसमें कोई इश्यूज आते हैं? वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इश्यूज आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसमें क्यों हुई है? एक पार्टी ने कहा फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी पार्टी जानती है कि फ़र्क पड़ता है, फैक्ट इसकी फ़र्क पड़ता है। ओके, अब हाउ मच अंडरस्टैंडिंग इज देयर, कितनी पेशेंस लेवल है उस फैमिली का जिसने छोटी फैमिली के साथ जुड़े हैं जी। क्योंकि when see life, a time comes when life is taken, your partner, you people take each other for granted. That is a time
क्रूशियस टाइम कि उस समय आपकी जुबान से क्या निकलता है, आप कैसे बिहेव करते हो। अगर उस समय आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो तो लाइफ इज स्मूथ। तो प्रवीण जी, हालांकि हमारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें आपसे डिस्कस करनी है और टाइम हमारे पास हमेशा थोड़ा कम ही रहता है, तो अगले एक पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट जाते जाते हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा अपनी तरफ से कुछ एडवाइजेस दे करके जाएं, जो आपके इतने सालों की विजडम है, जो आपने 28 साल में जो गैदर किया है, लाखों लोगों के लिए आपने काम किया है, तो कुछ चीज़ें जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें कि मैच मेकिंग के प्रोसेस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, या इन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, या कोई भी आपको लगता है जो हमारे व्यूअर जिससे बेनिफिट उठा सकें। नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए या ना करिए। वी हैव गिवन यू टोटल इंसाइट अबाउट द थिंग, इट इज़ योर टेक। कुछ और आप बताना चाहें? हम एनालिसिस किसी चीज़ पे नहीं करते और हम कभी भी अपनी सोच आप पे थोपना नहीं चाहते। हमने आपको एनालाइज करके पोस्टमार्टम करके चीज़ सामने रख दी। इट इज़ योर टेक, हाउ यू वांट इट। बहुत अच्छा लगा प्रवीण सर आपसे बात करके। इस टॉपिक को हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।